ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ USA ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2024 ਜਿਹੜਾ +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, PTs ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਟੋਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਲਕਿਨ ਮੈਮ, AVM ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੇ AVM ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ USA ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ USA ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ USA ਦਾ अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली कि USA, जब भी बच्चे के दिमाग में आता है हमने USA जाना है, तो बच्चा सोचता है कि कोई सही, कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए। जो रास्ते लोग अपना के अपने आप को दुविधा में डाल लेते हैं, अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं, जो कि आपको भी पता है क्या रास्ते हैं। व्हाट डू आई मीन। सो एक्चुअल में क्या होता है, USA जाना सबसे आसान है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। USA सिर्फ एक इंटरव्यू और एक आपका DS जो 160 फॉर्म, यानी कि एक तरह से आपकी जो SOP बनाई जाती है, जो वीज़ा ऑफिसर पढ़ के आपको वीज़ा देता है, उसको US में DS 160 कहते हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें मेन फैक्टर्स प्ले करती हैं जिससे USA आपको आसानी से वीज़ा दे देता है। अब इसमें आपका अगला सवाल जो था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूछ रहे थे कि क्या बैंड स्कोर चाहिए, क्या बच्चे के परसेंटेज चाहिए, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूँ, बच्चा पास होना चाहिए विद 60 परसेंटाइल इन हिज और हर लास्ट क्वालिफिकेशन। प्लस जो बच्चे का आइल्स है वो मैंडेटरी नहीं है। बच्चा आइल्स चाहे करे चाहे ना करे, आप USA विदाउट आइल्स, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आप विदाउट आइल्स USA में फाइल अप्लाई करा सकते हैं और ईजिली वहाँ का वीज़ा लगवा सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ USA ਦੀਆਂ। ਮੈਮ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਸਮਝਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ? वेल हाँ, USA इतना ज़रूर आपसे डिमांड करता है कि आपको इंग्लिश समझनी आनी चाहिए, आपको कुछ इंग्लिश में वर्ड्स समझ आने चाहिए, आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। दे डोंट आस्क फॉर फ्लुएंसी, दे डोंट आस्क कि आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपली ये मांगते हैं कि हाँ, आप इंग्लिश पढ़ सकें, समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग जवाब दे सकें। जिसके लिए बच्चे की आइल्स मैंडेटरी नहीं है। आपको कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आइल्स, PT, टॉफल, डुओलिंगो कोई एग्जाम नहीं देना। आपको जस्ट एक इंटरव्यू क्रैक करना है और वो उसी इंटरव्यू में आपको भाप लेते हैं, आपको बेसिकली वो जज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं इस बेसिक चीज़ को कि आप कितने कितने एलिजिबल हैं, क्या आप USA जाने के लिए सही कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। ਬਿਲਕੁਲ, USA ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ USA ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ AVM ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸਦੇ जवाब दे के वीज़ा ले सकते हैं? वेल आपको एक चीज़ क्लियरली बताऊं, इंटरव्यू है ना, लोगों ने हवा बना रखा है। पता नहीं कैसे क्लियर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 से 4 सवाल हैं जो वो घुमा फिरा के पूछता है और वो हम आपको प्रिपेयर कराते हैं। यानी AVM ग्लोबल आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कराएगा विद टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज कि क्या 3 से 4 सवाल हैं जिसको वो पैराफ्रेज करके आपसे पूछ सकता है। इंटरव्यू में कुछ नहीं देखा जाता। इंटरव्यू में सिर्फ ये देखा जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आप कितने जेन्युइन साउंड कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, हर चीज़। हमें लगता है कि हमारा इंटरव्यू सिर्फ वो 40-50 सेकेंड का जो इंटरव्यूअर ने लिया वही होता है। आप गलत हैं। जब आप एम्बेसी में एंट्री ले लेते हैं ना, तो आपको वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो आपका इंटरव्यू तभी से स्टार्ट हो जाता है।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਵੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 40+ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ? वेल टूरिस्ट वीज़ा के ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि सर ने बताया कि एज, हाँ एज हमारी थोड़ी मैच्योर होनी चाहिए, हमारे पास 2-3 जगहों की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, उन्हें ये लगना चाहिए आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप बाहर जाके सेटल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई भी कंट्री आराम से टूरिस्ट वीज़ा दे देगी। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंट्रीज़ मांगती हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, यूएसए चलो, कनाडा चलो, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी आप प्लान कर रहे हैं जाने का, वो सबसे ज़्यादा एक मेन चीज़ मांगती हैं आपके जाने का रीज़न। बेसिकली आप क्यों जाना चाहते हो, क्या रीज़न है, तो वो इनविटेशन स्पॉन्सरशिप के द्वारा आपका जो भी एजेंट है पर्टिकुलर वो देता है, प्रोवाइड करता है, एंड उस अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल आगे प्रोसेस कराती हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया यूएसए में आजकल T20 बहुत ट्रेंड पे है, बिल्कुल सही है। मिड ऑफ जून में ना T20 के मैचेस हो रहे हैं यूएसए के अंदर, क्रिकेट मैचेस, जो एक बहुत ही अच्छा जरिया बन सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपका वीज़ा लेने का, क्योंकि इसमें यूएसए आपको वीज़ा ग्रांट करके देगा, है ना, बिकॉज हम उसमें ओरिजिनल आपकी मैच की T20 मैच की टिकट लगाएंगे, प्रॉपर आपके DS 160 में मेंशन करेंगे कि आप वहाँ पे मैच देखने जा रहे हैं, आपकी आइटिनरीज हर एक चीज़ मेंशन्ड होती है, तो जिस भी हाफ पे आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं। रही बात T20 की टिकट की, तो वो स्लॉट्स बहुत लिमिटेड हमारे पास बचे हैं, बिकॉज आप खुद देख सकते हैं अभी जैसे कि मई स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास 1 महीने का टाइम है सिर्फ, जिसमें हमने आपकी टिकट भी लेनी है, आपकी प्रोसेसिंग भी करनी है और आपको प्रॉपर तरीके से वीज़ा के लिए प्रिपेयर भी करवाना है। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 9C AVM ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ T20 ਮੈਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ AVM ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਓ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪਲਕਿਨ ਸੈਗਨ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ AVM ਗਲੋਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ AVM ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? वेल जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया मांगती हैं फ़ंड्स का। कई यूनिवर्सिटीज़ 20 से 22 लाख कहती हैं, तो कई कहती हैं कि 40 लाख शो करके दो, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप अपनी फ़ाइल एलिजिबल है या नहीं है ये एजेंट पे छोड़ दीजिए। जैसे कि सर ने आपको बताया, अगर आपको पर्सनल प्रोफेशनल जिस तरीके से भी काउंसलिंग लेनी है, आपको लग रहा है आपको केस अपना प्रॉब्लमेटिक है, कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कोई डिस्कस करना है, आप ऑफिस विजिट करो, आप मुझसे
मुझसे पर्सनली आके भी मिल सकते हो। पलकिन सहगल मेरा शुभ नाम है। आप सेक्टर 9 सी एवीएम ग्लोबल में विजिट करो, क्योंकि एवीएम ग्लोबल आपको आपकी फाइल का बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बेस्ट इन द सेंस क्योंकि हम आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप किसी चीज में अच्छे हो या नहीं हो डजंट मैटर, हम उस चीज में आपको सिखाएंगे, उस चीज की गाइडेंस देंगे। जब उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी ना, तो ऑब्वियसली बात है आप उस चीज में बहुत बेटर करेंगे। तो उस चीज के लिए बिल्कुल मत घबराएं। इंटरव्यू, फाइल एलिजिबिलिटी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एवीएम ग्लोबल आओ, आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ YouTube Facebook ਤੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟਸ ਨੇ ਕਿ ਏਵੀਐਮ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ? ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ I-20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੋਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ I-20 ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਵੀਐਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? वेल अगर आप I-20 की बात करें तो एवीएम ग्लोबल आपको I-20 विद इन 10 वर्किंग डेज, जी हाँ सही सुना आपने, सिर्फ 10 दिनों के अंदर, मात्र 10 दिनों के अंदर I-20 आपको प्रोवाइड करवा के देगा। बिकॉज हमारे पास इंटरनल टाई अप्स होते हैं, हम आपको 10 से 12 वर्किंग डेज के अंदर I-20 प्रोवाइड करवा देंगे। रही बात इंटरव्यू स्लॉट्स की, तो हाँ इंटरव्यू स्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो लोगों को 2025 के मिल रहे हैं, है ना, जैन फेब मार्च के। तो उसके लिए भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवीएम आपको जब आप फाइल अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से विद इन अ मंथ के बाद, बिकॉज आपको ऑब्वियसली बात है प्रिपरेशन भी करवा के देनी है, तो विद इन अ मंथ के बाद, 1 महीने के बाद ही आपको इंटरव्यू अपॉइंटमेंट स्लॉट प्रोवाइड करा के दे। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ USA ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕਾਲ ਲੇਟ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਏਵੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2024 ਚੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। किस तरह के चेंजिंग ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ? कनाडा ने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ड्रास्टिकली चेंज करी हैं, है ना, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ले आया वो, कैपिंग कर दी है ना, 3,60,000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बच्चा पूरे साल में 2024 में जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ GIC की, GIC उसने डबल कर दी है, वर्क परमिट को लेके रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। तो कनाडा इस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट हो रखा है, लेकिन स्टिल कई बच्चों का सपना है, कई लोगों की ड्रीम कंट्री है कनाडा। मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं जो इतने परेशान होते हैं कि मैम हम एक साल से प्लान कर रहे थे कनाडा जाना, पैसे इकट्ठे कर रहे थे, कनाडा में जब पैसे 18 लाख लगने थे, कनाडा ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया, GIC बढ़ा दी, अपनी फीसेस में चेंजेस कर दिए, तो अब हम इतना पैसा कहाँ से लाएं? तो क्लाइंट्स भी अपनी जगह बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं होती है। तो उस केस की अगर हम बात करें तो आई थिंक हम पहले एक कॉल उठा लेते हैं। हाँ जी, एक कॉलर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? हेलो। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ सर मैं प्रिया बात कर रही हूँ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿया जी, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? सर मैंने ना यूएसए के रिगार्डिंग आपसे पूछना था, मैंने यूएसए जाना है। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਾइल ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? सर 23 पास आउट हूँ रिसेंटली। IELTS PT या TOEFL कुछ किया हुआ आपने? नहीं सर, वो कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है। अच्छा, तो IELTS PT कुछ प्लान कर रहे हो करने का या नहीं देना एग्जाम? नहीं मैम, मैंने सुना विदाउट आइल्स पीटी भी यूएसए हो जाता है। ठीक है, +2 में कितने परसेंटेज हैं आपके? 88% है मैम। ओके ओके, तो आप बिलोंग कहाँ से करते हो? मैम इधर ही लोकली चंडीगढ़ से। ओके, तो प्रिया जी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2023 पास आउट हैं आप और विदाउट IELTS फाइल आपकी एप्लीकेबल है, क्योंकि USA विदाउट IELTS PT फाइल एक्सेप्ट कर लेता है। रही बात आपके गैप की, बेसिकली आपने 2023 से 24 तक क्या किया है? मैम मैंने कुछ नहीं किया, मैं फ्री हूँ तब से। ठीक है, चलो कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको रजे मैं ना इसी साल का जुलाई इनटेक या फिर सितंबर इनटेक प्रोवाइड करवाऊंगी।
ठीक है, ओके ओके बिकॉज इसी साल में रजे फाइल हम आपकी अप्लाई कर देंगे, ताकि एक तो हमारा गैप ना बढ़े और कल को यूएसए को क्वेश्चन करने का मौका ना मिले कि आपने अगर प्लान पहले से कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं अप्लाई किया। लेकिन उसके लिए रजे जी एक बार ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात कर लेंगे, आपको प्रॉपर स्टेप समझा देंगे, क्योंकि जुलाई इनटेक में रजे मेरे पास सीट्स 95% फुल हो चुकी हैं। ओके मैम। मैम थोड़ा सा आप मेरे को एक्सपेंस का आइडिया दे सकते हैं कि मेरा टोटल कितना खर्चा आएगा, मेरे को फंड्स वगैरह कितने शो करने होंगे? रचित सी, आपके ना I-20 जो है वो 3 से 4 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे और विद इन 10 to 12 वर्किंग डेज आपको I-20 मिल जाएगी। और जोन से कॉलेज से I-20 आती है उसके अकॉर्डिंग हम फंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो कुछ ऑफर लेटर्स में कंडीशन डाल देते हैं वो कि आप 20 लाख शो करो, कईयों में डाल देते हैं 25 करो, कईयों में 30 करो, है ना, वो डिपेंड करता है। तो उस बिहाफ पे फंड्स क्राइटेरिया आपका रहता है, तो उसकी चलो आप टेंशन मत लो। बट रही बात रजे, एक इंटरव्यू सेशन होगा आपका, हाँ जी तो हाँ जी हाँ जी। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसमें से कहीं पे भी आप जाके बेसिकली इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको स्लॉट बुक करवा देंगे हम। तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट? यस मैम। डन। देखो, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद क्या था, जब चिंगारी नहीं है तो आग कैसे जलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा रेडी है इंटरव्यू देने के लिए तो एवीएम ग्लोबल बैठा है आपको प्रिपेयर कराने के लिए, उसकी बिल्कुल आप चिंता ना करें। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਵੀਐਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੇਂजिंग किस तरह ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ? हाँ, तो मैं कनाडा के ऊपर थी, जैसे कनाडा में इतने सारे रूल्स चेंज हुए हैं, तो उस बिहाफ पे फिर भी बच्चा कह रहा है कि मेरी ड्रीम कंट्री है, मुझे जाना है, जैसे भी करके वहाँ भेजो। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल वरी ना करें, बिकॉज एवीएम ग्लोबल के पास कई ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, पब्लिक कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चे की हम एडमिशन करा सकते हैं विद वर्क परमिट। प्लस सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज ऑफ जीआईसी, है ना। बच्चा कहाँ से भरेगा 20,000 समथिंग $635 जीआईसी, कहाँ से बच्चा इतना पैसा कहाँ से लाए। तो बच्चे के लिए हम क्यूबेक में कुछ पब्लिक कॉलेजेस के ऑप्शंस लेके आए हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास CNC, है ना, कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया, CDC लॉरियर, है ना। इसके अलावा कुछ और प्लिथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं, जिसमें सिर्फ क्यूबेक ही एक इकलौता ऐसा प्रोविंस है जो आपकी जीआईसी अराउंड $16,000 ले रहा है। अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं तो 7.5 लाख लमसम बनता है आपका। तो आई थिंक पब्लिक कॉलेज आपको मिल रहा है, जीआईसी भी ऑलमोस्ट आधी हो गई, है ना। तो आई थिंक ये तो एक सोने पे सुहागा वाला केस हो गया। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। आप जल्दी आइए, अपनी सीट अप्लाई कीजिए, बिकॉज इसमें भी हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कैपिंग हो गई है, तो हमने ऑलरेडी सीट्स खरीद ली हैं, है ना, इन कॉलेजेस की। तो सीट्स बहुत वैकेंसीज बहुत लिमिटेड पड़ी हैं। तो आप आइए, अपना केस डिस्कस कीजिए एंड अकॉर्डिंगली फाइल अप्लाई करा के जाइए। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਟਸ ਲਿਮਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਪਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ स्टडी वीज़ा ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है? कनाडा में हम आपको सितंबर इनटेक देंगे और सितंबर इनटेक में मेरे पास 80 to 85% वैकेंसीज फुल हैं, क्योंकि ये सीट्स ऑलरेडी खरीदी हुई हैं, है ना। तो इन सीट्स के बिहाफ पे हम आपकी फ़ाइल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फाइल अप्लाई करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ +2 ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂजिंग ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਦੀ। ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
वेल ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ की कंफ्यूजन में हैं कि 12वीं कर ली है ना, अब ग्रेजुएटेड भी हो गए तो जाएं कहाँ, जाना है तो बाहर जाना है ना। तो सबसे पहले खुद से पूछो बाहर क्यों जाना चाहते हो। बाहर जाने के ना सिर्फ कुछ 2 से 3 मेजर रीजंस होते हैं। एक लाइफस्टाइल, एक पैसा और दूसरा लग्जरीज, है ना। बिकॉज इंडिया में क्या है, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है। इंडिया में बहुत नॉलेज है, बहुत टैलेंट भर रखा है, लेकिन इंडिया में ना आपके टैलेंट की वैल्यू करने के लिए ना आपको उतनी अमाउंट नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा, इंडिया में आपको जो नॉलेज दी जाती है, बेसिकली जो पढ़ाई की जाती है, वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है रादर देन प्रैक्टिकल, और बाहर इससे थोड़ा सा ऑपोजिट चलता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, आजकल का जो यूथ है, बच्चा बाहर जाने के लिए विलिंग है। तो बच्चा अपनी जगह सही है, ऑब्वियसली हर कोई अपना फ्यूचर देखता है ना। 1-2 साल में आप वहाँ जाके इतना पैसा कमा लेते हैं, फिर PR अप्लाई कर देते हैं, सेटल हो जाते हैं, अपनी फैमिली सेटल कर देते हैं, तो बहुत लॉन्ग ड्रीम्स होते हैं बच्चों के। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले रजे आपको ना एक पेपर और पेन लेना है, और आपको कुछ कंट्रीज जहां आपको जाने में इंटरेस्ट है ना, उसको नोट डाउन करो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, UK जाना है, USA जाना है, लेट्स सी, आप ड्रीम तो ऑस्ट्रेलिया बनाया बैठे हो, है ना, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन में 2-2 3-3 साल का गैप है, आपके परसेंटेज ही 30-40% है, 50% है, आप कहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वीजा एक्सपेक्ट कर सकते हो। कर भी दोगे तो रिफ्यूजल आ जाएगा, और रिफ्यूजल आ गया तो आपको भी पता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो चीज़ नहीं करनी रचे। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लो कंट्रीज के बारे में। हर कंट्री का अलग क्राइटेरिया होता है वीजा देने का, हर कंट्री में अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं। कई कंट्रीज पढ़ाई में अच्छी हैं, कई कंट्रीज लाइफस्टाइल में अच्छी हैं, कई कंट्रीज साइंसेज में अच्छी हैं, कई लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, बहुत सारे फील्ड्स हैं, है ना हमारे पास। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होगी बच्चा, जिसके लिए यूट्यूब, जिसके लिए गूगल आपके पास है। प्लस हम जैसे कंसल्टेंट्स बैठे हैं, AVM ग्लोबल के पास आओ, आप हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारी जो एक्सपर्टीज टीम है, हमारे जो काउंसलर्स हैं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि इस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है, ये कंट्री आपके लिए सूटेबल है, और यहाँ ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? हेलो जी, मैं बात कर रही हूँ चंडीगढ़ से। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਦੱਸੋ ਕੀ हाँ जी, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी मेरी ना बेटी ने अभी +2 की है 2023 ਵਿੱਚ। कॉमर्स की वो स्टूडेंट है। 95% उसे नंबर आए हैं, और आइल्स ਵਿੱਚ उसे ओवरऑल 6.5, नोट लेस देन 6 है। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ मैं जानकारी लेना चाहती ਸੀਗੀ। ठीक है, आइल्स में क्या स्कोर बताया? 6.5, नॉट लेस देन 6। हाँ जी। 6 किस में है आपके? उसकी है 12th 2023 पास आउट है, और 95% है उसके ओवरऑल। अरे वाह, बच्चे का स्कोर तो बहुत अच्छा है। इसमें पूरे चांसेस आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी, और विद स्कॉलरशिप आपका केस निकलेगा। तो अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया आपने? 1 साल का गैप क्यों डाल दिया? अभी तक हमने मतलब कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ली थी, तो अभी प्लान बना इसके रिगार्डिंग ना। मैम, तो इतना टाइम थोड़ी लगता है इन्फॉर्मेशन लेने में। इन्फॉर्मेशन आप 1 महीना लो, 2 महीने लो, ये तो आपने इतने मंथ्स वेस्ट कर दिए। ओके, तो अब मैम है कोई इसके चांसेस? बिल्कुल मैम, ऑप्शन है आपके पास। आपको दिलवा दूंगी मैं कनाडा में, सितंबर इनटेक दिलवा दूंगी, और वो भी मैम पब्लिक कॉलेज में मिल जाएगा आपको, और बच्चा इजीली वहाँ पे काम कर सकता है, और अच्छी स्ट्रीम में पढ़ाई विद स्कॉलरशिप केस निकल जाएगा। उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। ओके मैम, ओवरऑल कितना खर्चा आ सकता है इसमें? मैम, एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी GIC है ना, इसमें GIC हम आपकी डबल पे नहीं करेंगे। हम आपकी GIC मैम अराउंड $16,000 पे करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इतनी GIC पे मैं आपका केस अप्लाई करूंगी, एंड लमसम वही आप लगा सकते हो हिसाब मैम, कितना खर्चा बैठेगा आपका विद ट्यूशन फीस मिला के। ट्यूशन फीस अराउंड 8-9 लाख रुपए है 1 साल की। ओके जी, ठीक है मैम, थैंक यू। ऑल राइट। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16,000 GIC, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20,635 GIC ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ 16,000 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? वेल, अपने पास कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिसमें हम आपका उन्हीं कॉलेजेस में करा रहे हैं, और बेसिकली प्रोविंस की जैसे मैंने बात की, क्यूबेक है ना, क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है, उसी प्रोविंस में हम आपका अप्लाई करा रहे हैं जिसकी GIC वैल्यू ही इतनी है ना। तो क्यूबेक में हम अप्लाई करेंगे, और जो मैंने आपको कुछ कॉलेजेस के नाम
नाम बताया, उसके अलावा कुछ सर्टेन कॉलेजेस पब्लिक और हैं हमारे पास टाइप में, तो उसी में ही कराएंगे अप्लाई। और क्यूबेक के अकॉर्डिंग अभी जीआईसी वैल्यू इतनी है हमारी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, कौन बोल रहे हो? सत श्री अकाल जी सर, मैं शिव बात कर रहा हूँ हरियाणा से, यमुनानगर से। हाँ जी, आप मैम से बात कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, मैं यूएसए का स्टडी वीजा रिगार्डिंग पूछ रहा था मैम अपना ना। ठीक है, हाँ जी मैम। प्रोफाइल बताओ मैम सर। ओके मैम, मैं मेरी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स मैम 2020 में कंप्लीट हुई थी मैम। मैम अम्बाला से। और मैम उसके बाद मैम मेरा गैप है मैम 4 साल का ना। अच्छा, तो मैम मेरा यूएस का स्टडी वीजा हो जाएगा मैम? कुछ आईएलटीएस पीटी किया हुआ है आपने? नहीं मैम, कुछ नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। देखो वैसे तो 4 साल का गैप है, तो प्रोफाइल को ना हमें अकॉर्डिंगली जो कॉम्प्लिकेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और एक इंटरव्यू बिहाफ पे केस निकालना पड़ेगा। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको कहूँगी कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करा लो, क्योंकि आपको अभी भी जुलाई इनटेक ऑप्शन है, मिल जाएगा। और जो गैप है रजे आपका, उसमें क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि किस तरीके से आपने लाइक क्या किया, कैसे किया, वो ऑन टेबल हम आपको बता देंगे। तो वो एक बार एम्बेसी में क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। मैम गैप क्लियर हो जाएगा ना मैम? ये उसकी टेंशन मत लो रजे, जो गैप होता है ना उसकी क्लैरिफिकेशन एम्बेसी मांगती है। तो वो क्लैरिफिकेशन क्या होता है कि आपने उन 4 सालों में क्या किया है ना, उसमें हम एम्बेसी को कोई रीजन दे देते हैं बेसिकली कि आपने 4 साल में क्या किया, क्या इशू आ गया था, किस वजह से गैप आ गया है ना। वो प्रॉपर आपके DS 160 में मेंशन हो जाता है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, और प्रॉपर तरीके से फाइल अप्लाई होगी। हाँ, लेकिन शर्त ये है बेटा जी, जुलाई इनटेक इज द लास्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसके बाद अगर लेट हो गया तो फिर आई कैन नॉट गारंटी वीजा। ओके मैम। चलो मैं विजिट करता हूं। डेफिनेटली। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਪ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ मैडम ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ना। ठीक है, कनाडा सर कैसे जाना है आपने, टूरिस्ट पे या स्टडी पे? मैम टूरिस्ट पे। ठीक है, क्या प्रोफाइल क्या है जी, आपकी उम्र कितनी है? मैम मेरी उम्र है 25। 25। मैरिड हैं आप या अनमैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड। अनमैरिड, ओके। तो क्या प्लान क्या है बेसिकली, मतलब कहाँ जाना चाहते हो कनाडा में? मैम टोरंटो या वैंकूवर भेज दो। ठीक है, तो अभी यहाँ करते क्या हो इंडिया में? जॉब कर रहा हूँ, अभी स्टडी खत्म हुई है मेरी पिछले साल। अच्छा, जॉब क्या कर रहे हो? मैम वैसे ही यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ एक IT कंपनी में। ठीक है, तो उस बिहाफ पे लाइक बच्चा प्रूफ है आपके पास कि क्या क्या जो काम कर रहे हो बेसिकली, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर कुछ दिया होगा उन्होंने आपको? हाँ जी मैम, हाँ जी। एक्चुअली यहाँ पे वो टेलीकॉलर में हो तो इस करके मेरे पास है सारी डन। अपॉइंटमेंट लेटर भी सब कुछ है। ठीक है। सैलरी अकाउंट में आ रही है बच्चा? हाँ जी। ठीक है, तो रचे देखो हो जाएगा आपका, बट मुझे एक बार पहले ये बताओ कि कनाडा में कोई अपना बंदा ऐसा रहता है जो हमें वहाँ से स्पॉन्सर कर सके, कि आपको वो अपने पास बुला रहे हैं, या कोई ब्लड रिलेशन में कोई बंदा हो जिसकी कोई इवेंट आ रहा हो? मैम ऐसा तो कोई नहीं है, बाकी जैसे फ्रेंड्स वगैरह है। हाँ, अच्छा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रजे। देखो आपका जो केस है ना, हम वाया इनविटेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। इनविटेशन क्या चीज़ होती है रजे? इनविटेशन ना हम आपको मंगवा के देते हैं बेसिकली वहाँ के किसी इवेंट का। हमने ये दिखाना है रजब, देखो आपकी एज कम है ना, 25 एज है आपकी, तो कनाडा को ऑब्वियसली पता है कि कनाडा ऑब्वियसली ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप वहाँ जाओगे तो सेटल होने जाओगे, तो इसीलिए कनाडा वीज़ा नहीं देगा। तो उस केस में रजे हम क्या करते हैं, हम उन्हें ये रीज़न देते हैं बेसिकली कि आप वहाँ किसी ज़रिए से जा रहे हो, और वो ज़रिया है कि आप वहाँ नॉलेज लेने जा रहे हो। हम आपको वहाँ के कॉन्फ्रेंस का, सेमिनार का, एक इवेंट का टिकट, इनविटेशन टिकट प्रोवाइड करवा के देते हैं रजे, जिसके बिहाफ पे आपकी फाइलिंग होती है और वीज़ा ग्रांट करवा के देते हैं।
अच्छा मैम, अच्छा। तो मैम इसमें मतलब कितना वो एक्सपेंस खर्चा वगैरह क्या हो जाएगा? राजू, एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा नहीं बैठेंगे आपके, ये फिर भी प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर करता है। आप एक बार ऑफिस आ जाओ बच्चा, ऑफिस आके एक बार ऑन टेबल बात कर लेंगे हम, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है मैम। तो मैम इसमें कुछ फंड्स वगैरह भी शो कुछ ऐसा है करना रजे पड़ता है? होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते इसमें, अराउंड 5-10 अच्छा, लाख रुपए, मतलब जितने आप कंफर्टेबल हैं शो करने में करवा देना, उस बिहाफ पे ही रजे आपकी फाइलिंग हो जाती है और वीज़ा निकल जाता है। बिकॉज़ जो इन्विटेशंस है ना रजे, प्रॉपर एक हाँ जी। रीज़न है। एम्बेसी को लगता है कि आप वहाँ, आपकी एज कम है ना? तो आप ऑब्वियसली वहाँ से सीखने जाओगे, आप यूथ हो, आने वाले टाइम में इंडिया का भविष्य हो, तो कनाडा से नॉलेज लेके इंडिया आके लगाओगे तो उन्हें, उनके लिए तो बल्कि बढ़िया ही है ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद जी।